Am I audible to guys? Yes, sir. So our team congratulate and welcome you all for making a present in the first webinar come contest Introduction to Competitive Programming presented by USICT chapter of Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi. So first of all, I would like to introduce you all with my team. My team comprises of Varnika Gupta, Gaurav Gupta, Rajat Kumar, and myself Chinmay Jain. We all are the student of MCA second year USICT Guru Gobind Singh Indraprasth University. So guys, there are few instructions to this webinar. I request you all to mute yourselves, and if you have any sort of queries, please ask your queries in the chat box. Your query will be answered immediately. Since we have decided that we will start this webinar at 6, so we have waited for 5 minutes and 37 people are right now there. So let us start. और कहे तो चलिए शुरू करते हैं. So our webinar topic is Introduction to Competitive Programming and Getting Started with CodeChef. Specifying the CodeChef here is that today CodeChef is the one of the leading chapters where we can introduce ourselves, practice our competitive skills, and improve there also. So let us begin. What is programming? Is it learning a programming language or thinking logically? What's your opinion in that? For me, it's like giving instruction to the computer to perform some specific task. But while giving instruction, you can't give the instruction in simple English, Hindi, or any other your mother tongue languages. We should need to learn any particular programming language through which we can instruct our computer or machine to perform that particular specific task. So what are these languages? You can uh, choose any of them. It can be a C++, Java, Python, JavaScript, Ruby, and many other. There are plenty of them. But choosing the language wisely is an key for success in the competitive programming. Every language has its own pros and cons. If you can see on your screen that C++ is the fastest executing programming language for competitive programming, which come with the incredible STL support. STL here stand for Standard Template Library, and from past few years, it is the most preferred language by the world champions all over the world. If you if you see the result of any competitive programming event, the programmer with the best ratings with minimum time to complete the event uses C++ programming language. Then there is a second most trendful language is Java. Java has the fast execution time, but it is slower than C++. Almost it takes double the time of C++ times. Then people tends to say that the Python is the easiest language to learn because it is relatable to our English language. We use Python as our in our data science also, so people are familiar with Python also with Python. But Python is considered to be very slow in the execution time, so it is not preferred for advanced competitive programming. Now, I would like to ask what you think about competitive programming. What your views about this? How can you tackle the problem when it's come to competitive programming? Let us understand such situation with a real life example. Consider that you are in an interview and the company has give you a problem statement that there are Aadhaar cards and SIM card. We all have Aadhaar card and we all know that our SIM card is linked with our Aadhaar card, or we can say that it is linked to KYC. So our problem statement is a telecom company has to fetch the postal address details from the Aadhaar card associated with the each SIM card. How will they do? So I am giving you 5 minutes to think about that and write your answer and opinion in the chat box.
Think about the problem and suggest your answer in the chat box. Come on, guys. It's not that difficult. You can answer it. Try at anything. You just need to answer the approach, not the exact algorithm. Think about searching. Okay, no worries. Let's say this is our data set, or you can say that every SIM card is attached with an individual Aadhaar card. Like SIM1 is attached with Aadhaar card 142, SIM2 is attached with Aadhaar card 293. Let's say there are 10 raised to power 9 SIM cards in our data set, and correspondingly there are 10 raised to power 9 Aadhaar cards. And being a company owner, I would like to access the Aadhaar card details of SIM number 10 raised to power 4. So if we think about linear search, we need to start from this SIM card 1 and traverse the array or our data set till SIM card 10 raised to power 4, and it will take 10 raised to power 4 operation. And similarly, if if I ask you for 10 raised to power 9 SIM card, you need to traverse your whole data set, and that will take 10 raised to power 9 operation in accessing every data card and matching it with your desired one. But do you know that our computer can perform only 10 raised to power 9 operations in a second? Therefore, to find or search a single SIM card's details or Aadhaar card details, you will take entire 1 second. Believe me, it may be very small when we are talking about 1 second, but in a computer computations and operation, 1 second is a very big time. Computations and operation take place in micro and nanoseconds, and comparing a single second with a micro and nanosecond is a very huge difference in that. And right now I have just asked you about a single SIM card. Let's say I am asking you about 10 raised to power 9 SIM cards. Then you will take 10 raised to power 18 operations in total. And 10 raised to power 18 operations means that you need to take 10 raised to power 9 seconds. 10 raised to power 9 seconds, it's like 2,77,777 hours. Is your system is compatible to perform such operations, working continuously for 31.7 years? Think about that. You may know the answer of linear search, but linear search wouldn't be useful or fruitful in your system. It will make your system completely off. So there is another searching technique which we called binary search technique. All we know that the binary search is a almost a divide and conquer technique, which divides our array with middle element. When I have asked you for the 10 raised to power 4 SIM card, it will divide the 10 raised to power 9 dataset into 2 and take it to 10 raised to power 5. Then we will compare our 10 raised to power 5 with the 10 raised to power 4. We know 10 raised to power 4 is less than 10 raised to power 5, so we will search in our leftmost array. Like that, our array will be divided in two half every time. So can anyone comment or write in chat box what is the time complexity of binary search in worst case? Yeah, log n. Thank you, Utkarsh, Dhruv, Kush, and Aditya. So here our n is 10 raised to power 9, and considering log base 2. Log base 2 10 raised to power 9 is almost 29.875, and considering it on the ceiling function, it will take 30 operation. So for one SIM card where we are doing 10 raised to power 9 operations in linear search,
we have reduced it to 10 raised to power almost 1. Yes, 10 raised to power almost 1 is 10 operation, into 3 is 30 operation for one SIM card. So where previously we were taking 31.7 years, now we are just doing in 30 seconds. Can you believe it? From 31.7 years to 30 seconds. That's how a competitive programmer think about a problem. Instead of going for direct brute force approach, he thinks logically. He tried to develop a solution for a problem which make our system effective, which make our system to run it effectively, efficiently. So such kind of problem solving is known as competitive programming. Now, I hand over my screen to Gaurav Gupta to tell you what is exactly competitive programming and why do we need competitive programming. Over to you, Gaurav. Hello, am I audible? Hello. Now You're what is competitive programming? अब देखो प्रोग्रामिंग तो हम अपने स्कूल लेवल से कर रहे हैं 11th-12th क्लास से, पर उधर क्या होता है हमें डायरेक्टली बता देते हैं कि आपका ये इनपुट गिवन है, आपको ये परफॉर्म करना है और ये डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है और ये आपका आउटपुट होएगा। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। उसमें आपको एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक स्टोरी के फॉर्म में। उसमें आपको बता देगा जैसे एक रामू है, उसका दोस्त है राजू, वो दोनों एक गेम खेल रहे हैं, रामू ऐसे चल रहा है, राजू ऐसे चल रहा है। तो एंड में आपको कंडीशंस दे देंगे और आपको बताना होगा कि उसका आउटपुट क्या होगा, पर वो आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है। जैसे ग्राफ का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ग्राफ के एल्गोरिथम अप्लाई हो रही है, कि आपको बीएफएस या डीएफएस अप्लाई करना है, क्या करना है। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद सोचना पड़ेगा क्या करना है। और इसके साथ साथ फिर हमें आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पे भी ध्यान देना पड़ता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। जो हम स्कूल लेवल पे करते थे उसमें हम ये कभी भी ध्यान नहीं देते थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या हमें रखना है, हम सीधा ब्रूट फोर्स अप्लाई करते थे। अब जैसे अभी चिन्मय ने डिस्कस किया कि अगर हम 10⁹ और 10⁹ दो हमारी अलग अलग थी, उसमें 31 ईयर्स लग जाएगी और वो ये बाइनरी सर्च अप्लाई करने के बाद काफी कम हो गया टाइम। तो ये चीजें हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अप्लाई करनी पड़ती है। चिन्मय नेक्स्ट स्लाइड। वाई डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है क्यों करें हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। पहली बात तो सैलरी अच्छी होएगी, यही सबको चाहिए सबसे इम्पोर्टेंटली तो। और उसके बाद अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा हाथ इतना अच्छा बन जाता है मतलब प्रोग्रामिंग पे कि हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। और जो कॉलेज लेवल के वो है हमारे प्रोग्राम्स वगैरह वो हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और हमें हैबिट हो जाएगी एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने की। कंपनी ज्यादातर प्रेफर करती है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं ताकि उनको उन पे मेहनत कम करनी पड़े। दैट्स ऑल। ओवर टू यू वर्णिका। Good evening, everyone. So, myself Varnika, and let's just start with writing a code. So, let me present. Chinmay, just can you please stop presenting? Is my screen visible? Yeah, visible. So, okay, let's just let me tell you something. तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने आप लोगों को बोला था कि अकाउंट में इंस्टीट्यूशन में ये यूएसआईसीटी रखना है, तो आपको यूएसआईसीटी चेंज करके गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी रखना है। तो आप एडिट का दबा के ऑप्शनल आप यहाँ पे जाके अपना कॉलेज का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द कॉन्टेस्ट, तो आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज बॉलिंग स्ट्रैटेजी। तो इसके अंदर बेसिकली we have a game, a cricket game. So like every game there are certain sets of methods and rules. Similarly here in a cricket game it is said that k number of players have to play in n overs, and the rule is कि हर player को
कुछ एल ओवर्स मिलेंगे टू बोल। एक और इसमें रूल है कि एग्जैक्टली वन बॉलर शुड बी असाइन इन अ सीक्वेंस। तो अगर हमने एक साथ दो प्लेयर्स को हमने असाइन कर दिया ओवर तो वो रूल ब्रेक हो जाएगा। तो इनपुट हमारे पास एक इनपुट होगा, किसी भी प्रॉब्लम में हमारे पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है, एंड हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ एग्जांपल इनपुट होते हैं, एंड ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं कि आपको प्रॉब्लम में करना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट। तो हमें एक इंटीजर मिलेगा t विच डिनोट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद हमें हर लाइन पे एक n, k और l की वैल्यू मिलेगी। n is the number of players, k is the number of n is the number of overs, k is the number of players, and l is the limit to which a bowler can bowl. So output हम इसमें -1 कर सकते हैं, या फिर हम इसमें एक n स्पेस सेपरेटेड -1 कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी असाइनमेंट नहीं होगा। अदरवाइज हमें एक लाइन से प्रिंट करना पड़ेगा जो भी हम एक असाइन करेंगे, जो भी हम एक आउटपुट देंगे। तो एग्जाम्पल इनपुट हमारे पास है, जैसे ये है। So we have 2 as a test case, then 4 as a number of overs, 3 as players, and 2 as limit which a bowler can bowl. अगर मैं इसको ध्यान से करूं तो मेरे पास n की वैल्यू हमारे 4 है, k की वैल्यू हमारे पास 3 है, एंड l की वैल्यू 2 है। तो टोटल हमारे पास ओवर्स कितने अलाउड है? अगर हम सोचें तो प्लेयर्स हमारे पास 3 है, एंड हर प्लेयर को दो ओवर बोल करना अलाउड है। तो टोटल हमारे पास जो ओवर्स हो गए वो k into l हो गए, दैट इज 6। अगर ये जो 6 की वैल्यू है वो n से कम आएगी तो ऑब्वियसली हम कुछ भी असाइन कर ले, हम कुछ भी करके एक आउटपुट नहीं निकाल सकते, हमेशा -1 ही आएगा। तो इसीलिए कंस्ट्रेंट हमारा ये हो जाता है कि n की वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन k into l। एक और कंस्टेंट इसमें ये होता है कि अगर हम n की वैल्यू 3 ले, अगर हम k की वैल्यू 1 ले, हम कुछ भी कर लें, हमारे पास प्लेयर एक ही है, हम उसको बार बार हम रिपीट करते रहेंगे एक सीक्वेंस में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और कंस्टेंट लगाएंगे कि अगर k की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बेसिकली हमारे पास से आउटपुट -1 ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेस्ट केसेस के लिए t इनपुट ले लेती हूँ। उसके बाद मैं एक लूप चला लेती हूँ, तब तक ये हमारा चलेगा। 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें एज पर क्वेश्चन हमें 3 वेरिएबल्स लेने हैं, n, k एंड l, n, k एंड l। तो हम उसको ले लेते हैं इनपुट। इसके बाद हमें एक कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा n जो है वो छोटा है k into l से, बड़ा है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा -1 होगा। और इसके बाद हम एंडल कर देंगे। एंडल इज सिंपली नेक्स्ट लाइन, क्योंकि नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है कि हर आउटपुट के बाद नेक्स्ट लाइन हमें चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा आंसर सही होते हुए भी गलत आ जाएगा, वो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू लगाएंगे। कंटिन्यू इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसके बाद हमें आगे फंक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है, हम इससे सिंपली आइट्रेशन को स्किप कर सकते हैं और ये इसके बाद सीधे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। इसके बाद कंडीशन हमने देखी थी कि और हम लगा रहे हैं क्योंकि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये जो हम लिख रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारा जो आउटपुट है वो -1 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर n की वैल्यू k की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू 1 नहीं है, तो भी हमारा आंसर -1 होगा। क्योंकि अगर n की वैल्यू भी 1 है एंड k की वैल्यू भी 1 है, तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, हमारा आंसर -1 होना जरूरी नहीं है। इसके बाद लेट्स राइट द असाइनमेंट। तो एक मैं टेम्पररी वेरिएबल ले रही हूँ जिसको मैं 0 से असाइन कर रही हूँ, एंड एक काउंट वेरिएबल ले रही हूँ
जिसको मैं 0 से असाइन कर रही हूँ। अगर कहीं भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो यू कैन आस्क मी। इसके बाद एक वाइल लूप चला रही हूँ मैं, तब तक चलाऊंगी जब तक ये काउंट जो है वो n के इक्वल ना हो जाए। इसके बाद मैं सिंपली सी आउट करूंगी m मॉड्यूलो k +1। इस स्टेप का मतलब ये है कि अगर मैंने किया था, लेट्स सी, अगर मेरे पास जो वैल्यूज थी, n की वैल्यू 4 थी, k की वैल्यू 3 थी एंड l की वैल्यू 2 थी, तो ये कंडीशन जो है ये इसने सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मुझे प्रिंट कैसे करना है, मुझे प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में कि अगर मेरे पास 3 प्लेयर्स हैं तो मैं उनको 1, 2, 3 एंड 1 ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे भी प्रिंट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे भी प्रिंट कर सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये वाला वे प्रेफर करूंगी बिकॉज इट इज इजियर। तो मैं इसके लिए लिखूंगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेम्प मॉड्यूलो के। मैं मॉड्यूलो इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज एक k की वैल्यू, सर्टेन k की वैल्यू जब वो रीच कर जाती है, इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करती है। अगर मैं n की वैल्यू 4 की जगह पे 6 ले लेती हूँ एंड तो मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकती हूँ कि अपनी वैल्यू k जो है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड्यूलो k लिखती हूँ। +1 में इसलिए करी होगी, जो मॉड्यूलो की वैल्यू होती है वो हमेशा, अगर मैं k की वैल्यू k मॉड्यूलो ले रही हूँ तो वो हमेशा 0 to k-1 लाई करेगी। हमें यहाँ पे 1 to k प्रिंट करना है, इसीलिए मैं +1 कर रही हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए दी बिकॉज हर वैल्यू के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस दे रही हूँ। यहाँ पे मैं टेम्प को प्लस करती हूँ एंड काउंट भी प्लस करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एंडल दे देती हूँ, तो हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए। आई थिंक दिस शुड वर्क, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रन इट विथ सैम्पल इनपुट। तो ये आउटपुट तो यहाँ पे सही आया है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सबमिट इट। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं सबमिट करती हूँ। ये करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। लेट मी जस्ट हैंड ओवर द स्क्रीन टू चिन्मय। So guys, you have seen. Okay, there is a question from Praful Devedi. Okay. So why I took -1? -1? Okay, +1 or -1? Can you please repeat your question? Manika, share the screen. Yes. See out -1. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअली में कि अगर कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे है 5, 4, 1, तो इसमें अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, लेट मी जस्ट राइट हियर, की वैल्यू मेरे पास 5 है, k की वैल्यू मेरे पास 1 है, सॉरी k की वैल्यू 4 है एंड l की वैल्यू 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग k इंटू l इज लेस देन n। अब अगर मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूं तो मेरे पास टोटल प्लेयर्स हैं 4, पर प्लेयर मुझे अलाउड है ओवर्स 1, तो टोटल मेरे पास ओवर बॉल करने के लिए मेरे पास हो गए 4 एन, यानी हमारे पास जितने ओवर हमें एक्चुअली में बॉल करने हैं वो 5 है, वो ही उससे ज्यादा है। तो हम
कुछ भी करके कुछ भी असाइनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। हम कैसे असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास प्लेयर 4 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब मेरे पास हर प्लेयर की जो लिमिट थी वो एक्सीड हो चुकी है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो मैं ना यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, ना 2 लिख सकती हूँ, ना 3 लिख सकती हूँ, और 4 तो मैं वैसे नहीं लिख सकती, बिकॉज 4 और 4 साथ में हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पास कोई भी तरीका नहीं, मैं यहाँ पे -1 सॉरी कोई भी असाइनमेंट क्रिएट कर सकती हूँ। इसलिए सिर्फ -1 के अलावा मुझे कुछ और प्रिंट नहीं करना। तो यहाँ लिखा हुआ है आउटपुट में कि अगर कोई वैलिड असाइनमेंट नहीं है बोलर्स का, तो हमें सिंपली एक लाइन में -1 प्रिंट करना है। इज योर डाउट क्लियर, प्रफुल्ल? ओके, थैंक यू। सो चिन्मय, प्लीज कंटिन्यू। So guys, you have seen that how to get introduced with competitive programming, कैसे करना है। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है, लाइक अभी वर्णिका ने आपको एक क्वेश्चन कर कर दिखाया है, उसमें कोई सब टास्क नहीं था। इट्स लाइक, वर्णिका, कैन यू शेयर द स्क्रीन फॉर वंस? यस, श्योर। Yeah. Like you see there that there we have given the input format, हमें given है कि हमारे पास टेस्ट केसेस होंगे और टेस्ट केसेस के पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट होंगे और उस पर्टिकुलर सेट के लिए कुछ आउटपुट होगा। तो इफ वी गो डाउन where we have given the task list, hold on Vanika, down, yeah, here where we have been given the constraints, that's like T is our test cases are ranging from 1 to 30, and our overs number of players and limit of the each player to bowl the overs is 10,000. Let's say if I have said that there are 10 raised to power 9 or 10 raised to power 6, so I can divide this problem into a various subtasks. Therefore, one subtask I am asking you to compute it for 10 raised to power 3, and for another subtask I am asking you to compute for 10 raised to power 9. ऐसे वेरियस सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिसका एक सॉल्यूशन ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ उसका एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन ढूंढ दें जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो, तो हम उसको 10⁵ या फिर 10⁵ तक चला सकते हैं। लेकिन अगर उसका कंस्ट्रेन ये है कि हमारा जो n है वो 10⁹ है और फिर हम अगर n स्क्वायर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो 10⁻18 चला जाता है, जो हमारी एक सेकेंडरी टाइम लिमिट में कंप्यूट नहीं हो सकता। तो कोडशेफ ऐसा करता है, कोडशेफ उसको सब टास्क में डिवाइड कर देता है क्वेश्चन को, कि एक क्वेश्चन को अगर आप n है जो 10⁻³ रख रहे हैं, अगर आप उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम आपको 30 पॉइंट्स देंगे, और पूरा 10⁹ के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम उसके 70 पॉइंट्स देंगे। तो जैसे जैसे आप कोडशेफ के हैबिचुअल होते रहोगे, उसके जो मंथली कॉन्टेस्ट करोगे, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। Now I would like to tell you about the monthly contest of the CodeChef. CodeChef में हर मंथ 3 कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग चैलेंज। तो लॉन्ग चैलेंज क्या है? लॉन्ग चैलेंज में आपको 8 to 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं with the time limit of 10 days. Like this, there are almost 9 to 10 questions, and you have been given the time limit of 10 days. Like the contest is beginning on 4th September and it's ending on 14th September. और हर कॉन्टेस्ट का अपना एक मार्किंग सिस्टम होता है। सबसे पहले जो लॉन्ग चैलेंज का मार्किंग सिस्टम होता है, उसमें हमारे ऊपर कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता कि लाइक अगर मैंने पहला क्वेश्चन 1 घंटे में करा है और आपने 2 घंटे में करा है तो मेरी रैंक आपसे ऊपर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वो क्वेश्चन 4 घंटे में कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन हूँ आज 8 घंटे में कर रहा हूँ, तो हम दोनों सेम रैंक पर आएंगे। हम कितने भी इसमें सबमिशंस कर सकते हैं, कितने सबमिशन के कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट्स के लिए अभी हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे। सॉल्यूशन कैन बी अ रॉन्ग आंसर, टाइम लिमिट एक्सीडेड, like this. And like I have told you about that, there are subtasks in this question, that if n is equal to 3, it is a subtask 1, and for other n is equal to 3, n equal to less than 5, then it's subtask 2. So you have been awarded a 1 point for subtask 1 and 99 points for subtask 2, such that different question has different marking scheme according to their complexities. And moreover,
सेकंड कॉन्टेस्ट जो कोचेव ऑर्गेनाइज करता है अपने मोस्टली थर्ड वीकेंड में, वो होता है कुक ऑफ। कुक ऑफ एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर आपको 2 hours 30 minutes का टाइम गिवन है और उसके अंदर आपको मोस्टली 5 to 6। Utkarsh, there is no penalty for wrong submission in the long challenge, but when it's come to cook off में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है और हर रॉन्ग सबमिशन के ऊपर टाइम पेनल्टी भी लगती है। लाइक अगर आपने पहला क्वेश्चन 5 मिनट्स में करा है लेकिन पहली अटेम्प्ट में नहीं दूसरी अटेम्प्ट में करा है और वही क्वेश्चन मैंने 5 मिनट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में करा है, तो मेरी रैंक आपसे बेटर होगी। कुक ऑफ आपको दोनों चीज के लिए तैयार करता है, टाइम के लिए भी और efficient solution in one attempt also। और कुक ऑफ कोड शेफ का लास्ट जो हमारा इवेंट होता है वो होता है लंच टाइम। अभी नेक्स्ट वीकेंड ही हमारा लंच टाइम, आई थिंक इसी वीकेंड हमारा लंच टाइम है। और लंच टाइम में जो मार्किंग स्कीम होती है वो कुछ इस हिसाब से होती है कि आपको रॉन्ग सबमिशन पे पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आपसे पहले सबमिशन करा है तो मेरी रैंक आपसे बेहतर होगी। सेम है, 3 hour कॉन्टेस्ट है 26 सितंबर को लंच टाइम हमारा, वही 5 to 6 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, नाउ कम अबाउट दिस रेटिंग। एज यू कैन सी देयर इज अ सिस्टम गिवन दैट योर रेटिंग इज 1631। सो कोड शेफ, हम जब आप इनिशियली कोड शेफ पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको 1500 पॉइंट्स इनिशियली गिवन होते हैं। अब 1500 पॉइंट्स से जैसे आप 1600 प्रूव करोगे तो आप 3 स्टार कोडर हो जाओगे। 1600 से बाद अब जब 1800 क्रॉस करोगे तो आप 4 स्टार कोडर हो जाओगे। जैसे आप 4 स्टार कोडर हो जाते हो आपको डिवीजन 1 में मूव किया जाता है। डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में क्या फर्क होता है? डिवीजन 2 के जो इनिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्वाइट बेसिक प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाता है, तो आपको वो सॉल्व करने की जगह सीधा आपको एक बेटर लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अच्छे लोगों के साथ compete करोगे। गाइस, सबसे बड़ा जो कोडशेफ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का फायदा है वो ये है कि कोडशेफ आपको मंथली चैलेंजेस के साथ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि दूसरे उस सेम क्वेश्चन के लिए बाकी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हो और आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। लॉन्ग चैलेंज आपको सोचने का टाइम देता है, कुक ऑफ आपको टाइम के साथ लड़ना और टाइम के अंदर रहकर बेटर एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिखाता है। और लॉन्ग लंच टाइम आपको एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोच के उसको कंप्लीट करने के लिए उसको एफिशिएंटली सबमिट करने सिखाता है। उसके बाद पिछले कुछ महीनों में बल्कि कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि कोडशेफ के 6-7 जो रेटर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे दैट शी इज अ 3 स्टार कोडर। जो 6 स्टार कोडर 7 स्टार कोडर है उनको सामने से गूगल की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से, फेसबुक की तरफ से इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं। क्योंकि सिंस वो अगर हम आज के टाइम पे किसी इंटरव्यू का, किसी प्लेसमेंट का प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा कोडिंग टेस्ट होता है, कुछ कंपनीज ग्रुप डिस्कशंस रखती हैं, कुछ नहीं रखती, फिर फोर्थ राउंड हमारा टेक्निकल राउंड होता है। सिंस वी कैन सी दैट अगर हम कोडशेफ पे 6-7 स्टार प्रोग्रामर है, कोडर है, तो कंपनी को पता चल जाता है कि हाँ, इस इंसान के पास उसकी लॉजिकल स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड बहुत जबरदस्त है। सो देर इज अ नो नीड फॉर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट, एनी कोडिंग टेस्ट। वो डायरेक्ट आपको टेक्निकल इंटरव्यू का मौका देते हैं। और हर कोई चाहता है कि यार गूगल में हमारी जॉब हो, यूट्यूब में जॉब हो, फ्लिपकार्ट में जॉब हो, फेसबुक में हो, नेटफ्लिक्स में हो, अमेजोन में हो। क्यों? क्योंकि पर्क्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, एक सोसाइटी स्टैंडर्ड आता है, सोसाइटी स्टेटस आता है। तो गाइस, कोडशेफ इज द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग दैट। मोर ओवर, एक चीज को सोचना, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमारे इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं होती। अभी भी मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत है। जब आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आप एक प्रेशर इवेंट के अंदर होते हो, तो एक प्रेशर सिचुएशन में होते हो। आप उस प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को कैसे कोप कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सब सीख पाते हो। इसलिए इस वक्त हमें, हमारी एक तरह से नीड भी है और आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना। थ्रू दिस क्लब, हम इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब के थ्रू हम खुद भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। हमारे लिए कोई 5 स्टार कोडर बहुत अच्छा कोडर नहीं है और कोई 0 स्टार 2 स्टार कोडर 1 स्टार कोडर बहुत बुरा कोडर नहीं है। हम सब इस वक्त एक जैसे हैं, एकदम बिगनर्स लेवल पे स्टार्ट करेंगे
बिगनर लेवल से धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो अभी हमारे पास अगले साल के लिए अगर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्राउड जो हमारे क्लब का है वो अभी मोस्टली 2022 2023 में अपने 2021 और 2022 में प्लेसमेंट के लिए बैठेगा। तो देखे जाए 2021 वालों के पास भी अभी 8 to 9 मंथ है अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे काम करने के लिए। एंड बिलीव मी गाइस, 8 to 9 मंथ बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसको सीखने के लिए। अब लैंग्वेज हमने पहले डिस्कस कर ही ली थी कि कौन सी लैंग्वेज किसमें है। स्टिल इट्स योर चॉइस कि आप कोई भी लैंग्वेज को चूज करो, उसके अंदर अपनी कमांड बनाओ, और कमांड बनाने के बाद, कमांड बनाने के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो। भले ही मान लीजिए अभी आपने आज एरे सीखा है, तो एक हैबिट डाल लीजिए कि आज एरे के 2 से 3 क्वेश्चन, भले इजी लेवल हो, मीडियम लेवल हो, एक्सपर्ट लेवल हो या हार्ड लेवल हो, उसके करने ही करने हैं, ट्राई करो। और तब तक सॉल्यूशन मत देखो जब तक आप पूरा गिव अप नहीं कर देते। आज क्वेश्चन को करने में 2 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन के टाइम में बांटो कि आज डे 1 के 2 घंटे लगे हैं, डे 2 के 2 घंटे लगे हैं, लेकिन हमें वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इरिस्पेक्ट कि भाई यार हो नहीं रहा, चलो सॉल्यूशन देख लेता हूँ और अगला क्वेश्चन पे वो सॉल्यूशन के थ्रू, ऐसा नहीं करना यार। ऐसे करोगे तो हम हमेशा सॉल्यूशन ही देखते रहेंगे, क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले खुद सोचो, उसका स्यूडो कोड ट्राई करो। स्यूडो कोड ट्राई करने के बाद उसका एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, अगर आपको लगता है कि मैं लॉजिकली उसको नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, तो उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद हम उसके ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉलो करने के बाद हम उसके थोड़े लॉजिकल सॉल्यूशन को सोचने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे सोचते सोचते हम आगे कुछ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे दैट वी आर इम्प्रूविंग। गाइस, फॉर अ टेक्निकल ग्लिच आई एम हैंड ओवरिंग माय स्क्रीन टू वर्णिका। वर्णिका, प्लीज कंटिन्यू, एंड प्रफुल वी विल आंसर योर क्वेरी जस्ट इन अ मिनट। Monica, can you hear me? Hello. Yes, hello everyone. Okay, how to join your team? Actually, इसके लिए एक आंसर है कि सबसे पहले तो ये चैप्टर स्टैब्लिश होगा आफ्टर द कॉन्टेस्ट। इसके बाद हम वॉलंटियर्स लेंगे एंड हम अपनी टीम को भी ग्रो करना चाहेंगे, बिकॉज आप साथ में ग्रो करेंगे। अब मैं भी अभी 3 स्टार होल्डर हूँ, कुछ ऐसा तो खास है नहीं, तो इसलिए हम साथ में ग्रो करेंगे। एंड इसीलिए फॉर इंक्रीजिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो कोडशिप ने इनिशिएटिव लिया है डीएसए लर्निंग सीरीज का, विच इज दिस। ये एक 1 ईयर के लिए थी, अभी तो कम बचे हैं दिन, लेकिन ये मार्च 2020 को स्टार्ट हुई थी एंड ये अभी तक है। तो अभी 186 डेज लेफ्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें ये कुछ चैप्टर्स हैं, तो इन्होंने 11 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बेसिक्स वार्म अप, इसके बाद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड, एसटीएल, बाइनरी सर्च एंड एटसेट्रा। तो इसके अंदर बेसिकली किसी भी हम उस पे जाएंगे लिंक पे, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक। तो ये एक बेसिक्स वार्म अप है, ये बेसिक्स है। तो इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर सिंपली हमें 42 प्रिंट करना है। 42 जब तक हम इनपुट ना ले लें तब तक हमें आउटपुट प्रिंट करते रहना है। तो जैसे ही इसने 42 दिया, हमने आउटपुट 1 to 88 के बाद स्टॉप कर दिया। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे सिंपल हैं। तो ये पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद ये चैप्टर है, सॉरी, सेकंड चैप्टर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एसटीएल। तो अगर आप इसके थ्रू चलेंगे ना, तो धीरे धीरे आप सब में नॉलेज है वो ग्रास्प कर लेंगे। उसके बाद इन लोगों ने इनिशिएटिव ये भी लिया है कि जैसे ये हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन लोगों ने लाइव सेशन जो है रिकॉर्ड किया। जैसे ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इन्होंने हर सेशन के लिए, हर टॉपिक के लिए इन्होंने लाइव सेशन रिकॉर्ड किया फॉर डाउट्स एंड फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। स्पेशली इसके नीचे इन्होंने यहाँ पे अबाउट द कॉन्टेस्ट में रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अगर आपको जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एंड बेसिक्स, इसके ऊपर आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप कहाँ से पढ़े, स्टार्ट कहाँ से करें, तो उन्होंने नीचे इसके लर्निंग रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं। जैसे ये है, बिगो नोटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वेश्चन, एनी इंटरव्यूज ऑल्सो। उसके अलावा ये है, ऐसे इन्होंने रिसोर्सेज हर चैनल, हर उसके लिए दिए, चैप्टर के लिए दिए हैं।
मैं अभी तो यहीं तक पहुंची हूँ, 4th चैप्टर तक, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि सारे चैप्टर्स में क्रॉस कर पाऊँ। टाइम लगता है, इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कैंपस चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, ताकि साथ में करें। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट टुगेदर। एंड अभी 7 o'clock से हमारा कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना। और हाँ, याद रखना कि आप कॉलेज का नाम चेंज कर दो। GJSIQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना वो रजिस्ट्रेशन में माना नहीं जाएगा। एंड let me just hand it over to Chinmay now. Hello, Chinmay. Gaurav, can you please take over ये प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए? हेलो, ये दीज आर सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोड शेफ तो अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया। कोड फोर्सेस भी एक कोड शेफ की तरह ही एक है प्लेटफॉर्म, पर उस पे लॉन्ग चैलेंजेस नहीं होते, शॉर्ट चैलेंजेस ही होते हैं। और उसमें 3 डिवीजन होती है, div 1, div 2, div 3। ऐसे ही एक हैकर रैंक है हमारे लिए। हैकर रैंक पे स्किल टेस्ट के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं आपको। जैसे अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, आप हो गए 4 या 5 स्टार, उस पर आपने अर्न कर लिया, तो उसके बाद आप स्किल स्किल टेस्ट दे सकते हो सर्टिफिकेशन के लिए। और ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि कंपनीज, उसके बाद हम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं हैकर रैंक के थ्रू। और sports.com एक वेबसाइट है, जिस अगर कोड शेफ पे आने से पहले वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो sports.com पे। एंड गीक फॉर गीक्स तो सबको पता ही है, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो उनका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। सो गाइस 7 बजे अभी सबको कॉन्टेस्ट प्लीज ज्वाइन करना। कॉन्टेस्ट, हाँ मोहित, लीड कोड भी बहुत अच्छा है। लीड कोड में क्या है, लीड कोड का जो हमें जो ऐसा लगता है कि लीड कोड थोड़ा बिगनर्स लेवल के लिए टफ रहता है। बीइंग इफ यू थिंक दैट यू कैन, सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग लीड कोड। लीड कोड इज वेरी गुड, बट थोड़ा बिगनर लेवल, उस बिगनर्स उसको देख के डर जाते हैं। उसकी थोड़ी जो क्वेश्चन लैंग्वेज होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, वो बिट टफ होती है, उसकी थोड़ी इंग्लिश टफ होती है। और इसलिए बीट कोड सेम एज इंटरव्यू बिट, इंटरव्यू बिट को भी प्रोसीड किया जा सकता है। इंटरव्यू बिट ऐसे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। ये हमने कुछ के नाम लिए जो हमें स्ट्राइक करे। इंटरव्यू बिट बहुत अच्छा है। अभी अभी बल्कि 27 को इंटरव्यू बिट ने कोड नेशन भी ऑर्गेनाइज करा हुआ है। तो मेन मैं अभी आपको ये कहना चाहूंगा कि जो 7 बजे वाला कॉन्टेस्ट है, वो 45 मिनट्स कॉन्टेस्ट है। प्री रिक्वायर्ड आपको बता ही दिया है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन को अप्रोच करना है। उसके बाद साथ साथ आपका जो इंस्टीट्यूशन नेम है, उसके लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होना जरूरी है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मोर ओवर देयर आर 8 to 9 क्वेश्चन। सुनने में ऐसा लगता है कि 45 मिनट्स में 8 to 9 क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेसिक से स्टार्ट करे हमने। बेसिक से धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। इवन आपको कुछ को तो ऐसा लगेगा, यार इस क्वेश्चन के ऊपर क्यों ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया कॉन्टेस्ट में। पर गाइस, यहाँ पर हम सब अलग अलग तरह के, कोई 1 स्टार है, कोई 2 स्टार है, कोई 5 स्टार है, तो सबके हिसाब से हमने कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश करी है।
बस अभी 10 मिनट में कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो, और किसी को लिंक नहीं मिला हो कॉन्टेस्ट का या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें। साथ साथ आपको कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद आप सबकी मेल के ऊपर एक फीडबैक फॉर्म आएगा जो वेबिनार के लिए और कॉन्टेस्ट से रिलेटेड आपको प्लीज फीडबैक दें, ताकि हम आगे आने वाले वेबिनार्स को कॉन्टेस्ट को और बेटरली प्रेजेंट कर सके। क्योंकि यार जितना हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बेटर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको बेटर नहीं मिल पाएगा और आप भी बेटर कवर अप नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य आपको लिंक अभी भेज देते हैं। रजत प्लीज फॉरवर्ड द लिंक इन द चैट बॉक्स ऑफ कॉन्टेस्ट। या थैंक यू वर्णिका। सो एनी अदर थिंग गाइस, या फिर चलिए अब खत्म करने वाली चीज बारी आ गई है। किसी को आई कोई थिंक डाउट हो रही है तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है। आई होप ऑल क्लियर नाउ, क्लियर हो। वर्णिका ने हमारी टीम में क्वेश्चन भी फोर्थ समझाया। मेंबर भी है एक्चुअली में, रजत कुमार, उसने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। रजत वुड यू लाइक? रजत कुछ तो आप, उसने सारे सॉरी पोस्टर्स एंड चिराग, ही इज द इवेंट लीड एक्चुअली, उसने सारे पोस्टर्स एंड देयर इज अ guys, can you mute yourself? There is question in the chat box. Sorry Chirag, didn't get your question. Can you rewrite it in better language? Yeah, actually CP has a job, as I've said that आजकल जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है और फिर उसके बाद कोडिंग राउंड करवाता है। तो कोडिंग राउंड में 70 to 80% क्वेश्चंस अगर कंपनीज के जो क्वेश्चन वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप लीनियर सर्च परफॉर्म करो या बाइनरी सर्च परफॉर्म करो। वो क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म करवाएंगे कि वो बाइनरी सर्च या फिर लीनियर सर्च की एप्लीकेशन बनेगा, और उस एप्लीकेशन को सोचकर उसमें इंप्लीमेंट करना ही एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। कि कैसे उस क्वेश्चन को सोचना है कि हाँ इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लग रहा है, इसके अंदर हमको सॉर्टिंग करनी है, इसके अंदर हमें ग्राफ का कोई बीएफएस जीएफएस की कोई एप्लीकेशन है। तो इस चीज को सोचना, उस चीज को इंप्लीमेंट करना ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। और सेकंड राउंड को क्लियर करोगे तभी तो यार थर्ड राउंड में जाओगे। तो यस, सीपी हेल्प्स इन गेटिंग यू जॉब्स एंड ग्रेट जॉब्स। एंड सीपी या से आपकी रजत यू कैन प्रॉब्लम कंटिन्यू। सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अगर आप वही क्वेश्चन सीपी के चक्कर में अगर आप करोगे तो 2-2 घंटे में आपको एक सॉरी हाफ एन आवर में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका लॉजिक बनाना है, आपको उसका कोड लिखना होता है। अगर आप सीपी रेगुलरली करोगे तो आपकी ये जो स्किल्स होती हैं वो बहुत इंप्रूव होती हैं और आपको इंटरव्यू के टाइम में बहुत हेल्प करती या रजत यू कैन कंटिन्यू, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पीपल नो वेरी लेस अबाउट यू। एक सेकंड, क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। या पूनम have asked that CodeChef is the best platform for coding. या पूनम, as I've already told, there are various, और मी बेस्ट यार जिस पे तुम रेगुलरली कर सको, जिस पे कंपटीशन हेल्दी हो, ये ना हो कि भाई सिर्फ तुम ही कोड कर रहे हो और कोई कोड ही नहीं कर रहा। तो उस प्लेटफॉर्म पे कोड करने का फायदा नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया कोड सब आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। कि लॉन्ग चैलेंज में आपको टाइम मिल रहा है सोचने के लिए, कुक ऑफ में आपके पास टाइम भी लिमिटेड है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर सबमिटिंग ए क्वेश्चन वो भी लिमिटेड है। लॉन्ग चैलेंज में आपके पास 3 आवर्स तो है, लेकिन आपको सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो कोड शेफ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फिर सब टास्क भी देता है कि मान लीजिए आप उसका लॉजिकल क्वेश्चन, उसका पूरा ब्रूट फोर्स की जगह जो उसका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला एक्चुअल सॉल्यूशन था वो नहीं सोच पाए, लेकिन ब्रूट फोर्स सोच पाए, तो ब्रूट फोर्स के लिए अटेम्प्ट करो, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो कोड शेफ उस चीज में बहुत बेटर है, उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, यूजर के साथ इंटरेक्टिव इंटरफेस है।
देखा जाए तो कोड फोर्सेस का लोग जो कंप्लेन करते हैं कोड फोर्सेस के लिए कि कोड फोर्सेस का इंटरफेस बहुत बेकार है, मतलब कि बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। ऐसा लगता है कि सिंपल बेसिक सी HTML वेबसाइट बना दी है और कह दिया कि आओ यार कोड कर लेते हैं। पर कोड कोड फोर्सेस का ये है कि कोड फोर्सेस इवेंट बहुत करवाता है, तो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट कोडशेफ इज वी वी ऑल फोर प्रेफर कोडशेफ, सो वी आर लिंकिंग विद द कोडशेफ। और एक और चीज है, प्रेफर ऐसी जगह करो कोडिंग जहाँ पे आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो आपके अंदर एक वो रहता है कि रैंकिंग मेरे को बढ़ानी है, मेरी गिरी तो बुरा लगता है गिरना, मतलब रेटिंग ऐसे मोटिवेशन जगह। होता है। हाँ, मोटिवेट होते हो कि रेटिंग बढ़ानी है मेरे को, अब मैं 3 स्टार से 2 स्टार आ गया, फिर 1 स्टार आ गया, तो ये ना हो। So guys, it's already 6:55. I request you all to log in your CodeChef account. The contest is just 5 minutes away, and be ready. Don't try to cheat, please. और अगर किसी ने अपना Don't कॉलेज नेम चेंज नहीं किया तो कर लो जल्दी से। please ऑल द college बेस्ट गाइस। institution का name change करना है. All the best. We are ending our session and hope you have enjoyed it and feel एक सेकंड, good feeling. Sorry. जिनमें Yeah, Gaurav. फीडबैक Yeah. फीडबैक फॉर्म की लिंक शेयर कर दो एक बार। Yeah. Please, please, please. वी विल मेल इट आल्सो। We will mail it, and moreover, we are sharing your guys the feedback form in the chat box. Okay, we will mail the feedback link to you all. Please fill it. Thank you so much for joining us. Let's hope we grow Hope to see you together. in the next session. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Okay, links has been shared. We will mail it also. Okay. Thank you so much. You guys can proceed to the CodeChef website for the event starting in just 3 minutes. Thank you all. We are ending meeting right now.